देखिए, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम लोग ये टारगेट करते हैं कि स्पेशली जहाँ एफडीआई इन्वॉल्व है, जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व है, ऐसे एमओयूज उन सबकी इच्छा होती है कि हम लोग डावोस में करें। तो मेरा अपना मानना यह है कि इस बार हम जो पिछले बार हम लोगों ने एमओयूज किए थे उससे ज़्यादा ही इस साल हमारे एमओयूज होंगे, उसकी अमाउंट भी उससे ज़्यादा ही होगी। और डाइवर्स सेक्टर है, मतलब सारे प्रकार के जो मैन्युफैक्चरिंग हो, डेटा सेंटर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारे प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ तो लोगों से हमारी बातचीत हुई है और कुछ यहाँ पर भी बातचीत होकर फिर वो शायद यहाँ पर बातचीत हमारी फाइनल होती है और बाद में इंडिया जाकर हम उसको करेंगे। Sir, amid this geopolitical situation, what Maharashtra will offer additional to the investors? See, what Maharashtra offers is credibility. So you don't have to offer anything more. In today's world, credibility is more than capital, and that is what Maharashtra has been doing. Whatever we have been saying, we have been delivering, and that is why you can see a huge and renewed interest in investing in Maharashtra. Of course, credit goes to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who has created an atmosphere and an ecosystem where everybody wants to invest in India, and we are here just to tell everybody the Maharashtra story and just to tell them that in India, Maharashtra is the best place to invest. And any sector, specific sectors? No, we are targeting all sectors because we have a very diverse portfolio, and after we finish our business, we'll be able to tell you, but I'm sure that at least in 10 to 12 different sectors will be executing the MOUs. And how much of the last year MOUs realized till now? So I must tell you that our Honorable Minister for Industries, he has also given a statement in the floor of Assembly whereby he has told what is the progress. So I must tell you that normally in India, we have seen that in most of the states, 35% of the MOUs which normally we undergo, they are certified. But in case of Maharashtra, it is more than 55% to 60%. But in case of the MOUs which we actually did in Davos, it is more than 75%, which have been actually acted upon. So you have inaugurated the pavilion here. What is, and this is your fourth visit here. We met you last time as well as the work the state is doing. What really is Maharashtra state's agenda here at the World Economic Forum this year, keeping in mind the theme, the spirit of dialogue? See, I think today we are in a connected world, and India and of course Maharashtra is a place which is a land of opportunities. We are here to showcase those opportunities. Ultimately, this is a place where you have to be relevant. We are here to show that we are relevant. We are the place for investment, and I'm sure that we'll stay connected to the people. We'll try that the businesses also meet through us. So we are a gateway for Indian businesses to meet their foreign counterparts, and I'm absolutely sure that at the end of the day, we'll be very successful. सर, बीएमसी में भी आपको एक शानदार जीत मिली है, तो क्या वेस्ट से भी बॉम्बे के लिए, मुंबई के लिए कुछ स्पेशल एमओयूज हो सकते हैं जो मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? बिल्कुल होने वाले हैं, और विशेष रूप से हम जो तीसरी मुंबई तैयार कर रहे हैं, उस तीसरी मुंबई के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग निवेश देख रहे हैं, क्योंकि आज स्पेशली जो इंटरनेशनल फंड्स है, वो फंड्स भारत की ओर निवेश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन के रूप में भारत को देख रहे हैं। और आज हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, और स्पेशली जो न्यू मुंबई का एयरपोर्ट है, और हमारा अटल सेतु है, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, उससे एक बहुत बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन तैयार हो रहा है। मतलब मैं अगर कहूँ तो करीब 675 स्क्वायर किलोमीटर का एक पूरा एरिया ये ओपन अप हुआ है, जहाँ पर हम लोग एक प्रकार से नई मुंबई बसाना चाहते हैं। वहाँ हम लोग एजू सिटी तैयार कर रहे हैं, वहाँ हम मेडी सिटी तैयार कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स सिटी तैयार कर रहे हैं, वहाँ हम इनोवेशन सिटी तैयार कर रहे हैं।
वहाँ GCC सिटी तैयार कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थीम बेस्ड ऐसा एक बहुत हमारा अप्रोच बड़ा है कि जिसमें बहुत निवेश भी आएगा और बहुत अच्छे हाई पेड जॉब्स भी वहाँ पर तैयार होंगे। सर ये जिस तरह से कंपटीशन है और जिस तरह से अलग अलग टैरिफ और यहाँ पे वॉर हो रहे हैं, तो उस एंगल से आप इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो अगर आप बात करेंगे कि अलग अलग जो भारत के स्टेट्स हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हेल्दी कंपटीशन है और कोई भी यहाँ पर आकर अगर सक्सेसफुल होता है तो हमारे लिए वो बहुत हर्ष की बात है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट भारत में ही आनी चाहिए, ये हमारा पहला गोल है। और हमारा इंटरेस्ट महाराष्ट्र, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि वो महाराष्ट्र में आनी चाहिए। जहाँ तक जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों का सवाल है या जो भी टैरिफ की सारी बात है, तो इसके ऊपर हमने पहले ही पॉलिसी तैयार कर ली। उस पॉलिसी के इंटरवेंशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब हमारे जो इन्वेस्टमेंट के फिगर्स जो सामने आए हैं या पिछले साल का हम देख रहे हैं, या FDI भी अभी जो 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट आए हैं उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 है। तो मुझे लगता है कि हमारी पॉलिसीज कहीं ना कहीं काम कर रही है, क्योंकि टैरिफ का एक अपना अलग विषय है जिसके ऊपर कुछ इंडस्ट्रीज को जो प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग मदद कर रहे हैं। और ओवरऑल मैं नहीं मानता कि उसका ऐसा कोई असर है कि जिससे इन्वेस्टमेंट पूरी रुकी हुई। सर लास्ट क्वेश्चन यही सवाल सर मराठी में, महाराष्ट्र और मुंबई को इस वेब से मला असं वाटतं की महाराष्ट्राकरता वेब जी आहे ती एक अशी जागा आहे की ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आम्ही महाराष्ट्र शोकेस करतो। इथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम ही एक प्रकारची इन्व्हेस्टर्सची किंवा बिझनेसेसची चावडी आहे। या चावडीवर सगळे लोक तुम्हाला एका ठिकाणी भेटतात आणि इथे राहणं हे म्हणजे आपल्या राज्याला रेलेव्हंट ठेवणं आहे। आणि आम्ही मागच्या वेळी आलो, दरवर्षी आम्ही येतो आणि खूप चांगल्या प्रकारे इथे इन्व्हेस्टमेंट महाराष्ट्राला मिळते। याही वेळी मला अपेक्षा आहे की खूप चांगल्या पद्धतीनं आम्हाला गुंतवणूक मिळेल। मी विशेषतः आपले देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे आभार मानतो की त्यांनी आज भारताला ग्लोबली एक अतिशय रेलेव्हंट अशा प्रकारचं डेस्टिनेशन म्हणून तयार केलेलं आहे। वेगवेगळ्या सेक्टरची इन्व्हेस्टमेंट भारतात येते। आमचा प्रयत्न आहे की ही जी इकोसिस्टम त्यांनी तयार केली आहे तिचा फायदा घेऊन महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकावर भारतात ठेवायचं, आणि ते सातत्याने आम्ही करू शकलेलो आहोत। त्यामुळे आताही ज्या इन्व्हेस्टमेंट येतील महाराष्ट्रातल्या, माझा अंदाज असा आहे की सगळ्या भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये इन्व्हेस्टमेंट आम्हाला मिळतील। आणि विशेषतः मुंबईचा विचार कराल तर आता जी 3री मुंबई आपण तयार करतो आहे, या 3ऱ्या मुंबईकरता खूप मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक या ठिकाणी मिळेल अशी मला अपेक्षा। कारण विशेषतः जे काही फॉरेन फंड्स आहेत ते भारतामध्ये अपॉर्च्युनिटीज पाहत आहेत, अशा प्रकारच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये, न्यू टाउनशिप्समध्ये गुंतवणूक करण्याच्या, थीम बेस्ड अशा प्रकारच्या नवीन पार्क्समध्ये गुंतवणुकी करण्याच्या। तर त्याकरता एक प्रकारे मी जर असं म्हटलं की मेन्यू कार्ड आमच्याकडे आहे की तुम्हाला कुठे करायचं सांगा, आमच्याजवळ ती जागा आहे, अशा पद्धतीनं सगळी तयारी करून आम्ही आलो। Thank you.